ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ। 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਨਿਸਫਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ ਤਤ ਮਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭਵੇ ਬੈਬਾਨ, ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੂਸੇ ਮੰਤਰ ਮਸਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਜਾਨ। ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨਹੁ ਚਾਰ, ਅਵਰ ਕਰਮ ਲੋਕੈ ਪਤਿਆਰ। ਚੌਥਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੁਚ, ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਲਈ। ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਵਹਿਮਾਂ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਪਾਖੰਡ ਬਹੁ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਟਕ ਅਗਲੇਰੇ, ਵੀਰਾ ਰਾਧਨ ਜੋਗਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਵਿਢਾਨ ਕਨੇਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ ਥਾਉ, ਨਾ ਪਾਇਨ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ, ਕੂੜ ਇੱਕ ਗੰਢੀ 100 ਫੇਰੇ। ਦੂਜਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵਕਾ ਤੰਤ, ਨਾ ਮੰਤ ਨਾ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਤੀਜਾ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰ, ਕਲੈ ਕਰੋਧ ਬਹੁਵਾਦ ਵਧਾਵੈ, ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ। ਚੌਥਾ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਰਸਾਇਣਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਖ ਲਪਟਾਏ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪੰਜਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਹਬਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ, ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਣੀ। ਛੇਵਾਂ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਲਖ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜਾਰੀ ਨੰਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਭਾਵੋ ਸੰਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਆਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਨਛੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਏ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਸ਼ੀ ਫੋਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਔਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸੰਸਾਰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜੌਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਹਿਲੇ ਕਮਾਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਾਖੰਡੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਚੇਟਕੀ ਔਰ ਪਖੰਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨਛੱਤਰ ਔਰ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਫਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਔਰ ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਭਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ
मैथों बिना दूजे दी मुहब्बत उन्हां दे दिलां तो दूर कर और सब नूं सच्चे रस्ते पर लिया। भाई गुरदास जी इसे प्रसंग पर कथन करते हैं, गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो, पतिव्रत एक टेक दुविधा निवारी है, पूछत ना जोतक ओ वेद तिथवार कछ, ग्रह और नक्षत्र की ना शंका उतारी है। अध्याय 13वां यज्ञ होम। मेरे प्रेमी हिंदू भाई, आप दे मत विच यज्ञ और होम दी अपार महिमा है और यज्ञ द्वारा सब कारजां दी सिद्धि मन्नी गई है। यथा यज्ञ सब फलां दे देण वाला है, यज्ञ करके ही देवते जिउंदे हन। जो पशु यज्ञ विच मारिया जांदा है ओह मारन वाले समेत स्वर्ग नूं प्राप्त हुंदा है। दूजा, ब्रह्मा जी ने पशु यज्ञ वास्ते ही बनाए हन। यज्ञ विच पशु मारन करके सारे संसार दा भला हुंदा है, इस लई हिंसा दा कोई दोष नहीं। यज्ञ वास्ते धान, जौ, दरख्त, पशु, पंछी और कच्छू आदिक जो नाश हुंदे हन ओह सब उत्तम योनियां नूं प्राप्त हुंदे हन। जो यज्ञ और श्राद्ध विच बलिदान किते होए मांस नूं नहीं खांदा ओह मर के 21 जन्म ताईं सूर बनदा है। एक जरूरी फुटनोट, यजुर्वेद सारा यज्ञां दी महिमा और विधियां नाल भरिया होया है। वेदां दे समय यज्ञ तो वध के होर कोई उत्तम कर्म नहीं सी और यज्ञ जीवां दीयां कुर्बानियां नाल होया करदे सन और लोकां दा इत्थों ताई भरोसा सी कि यज्ञ द्वारा ही इंद्र आदिक पदवियां मिलदियां हन। हिंदुआं दा निश्चय है कि राक्षसां दा राज प्रताप तद नाश होया सी जद विष्णु ने बुद्ध अवतार धार के यज्ञां दी निंदा कीती और अहिंसा धर्म दृढ़ाए। पुराणा विच ऐसे प्रसंग भी हन कि इंद्र ने लोकां नूं यज्ञ करदे देख के इस लई विघन कीते कि मते यह लोक यज्ञ पूर्ण होण करके मेरी पदवी लै लैण। इस प्रसंग की पुष्टि वास्ते देखो साडे लायक भाई की रचना वेद पड़ताल और खास करके वेदक कुर्बानियां, जिस तो आप पूर्ण निरसंदेह हो जाओगे। फुटनोट समाप्त। हिंदू मत दे यज्ञ परोपकार नूं मुख रख के नहीं होया करदे सै, बल्कि उन्हां विच बड़ी स्वार्थपूर्ता सी। यथा ब्राह्मण नूं जिस यज्ञ विच थोड़ी दक्षिणा मिले ओह ना करे। दूजा, थोड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ नेत्र आदिक इंद्रियां, यश, स्वर्ग, उमर, मरे होए दी कीर्ति, औलाद और पशु आदिकां नूं नाश कर दिंदे हन। इस लई थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ ना करे। हुण होम दी महिमा सुनो। अग विच जो आहुति पाई जाती है वह सूरज नूं पहुंचती है और उस आहुति का रस सूरज विचों बरखा होके टपकदा है, जिस तो अन्न पैदा हुंदे हन और परजा वधदी है। एक जरूरी फुटनोट, वेदां दी वड्डी तालीम होम है। जमाने दी चाल नूं वेख के अर्थां नूं उल्टाउण वाले साधु दयानंद भी अपनी बुद्धि दे बल नाल वेदां विचों होम नूं नहीं कढ सके और मसला यह घड़िया कि होम नाल हवा साफ हुंदी है। इस विच शंका नहीं कि जे गुग्गल, मुश्क, काफूर और चंदन जिहे पदार्थ जलाए जान तां जरूर हवा साफ हुंदी है, पर हिंदू मत विच जो हवन दी सामग्री दसी है उस नाल नहीं। गुग्गल आदिक दा जलाउणा तद तक ठीक है जे घर दे सारे कमरिਆਂ विच धूप दित्ती जावे, ना कि नदी दे किनारे लकड़ां फूक के और धुएं नाल अखां दा सत्यानाश करके। साधु दयानंद दे होम विषे बाबत मनोहर बचन सुनो। जंगल विच नदी दे किनारे सवेरे और आथणे एक बर्तन विच जो 16 उंगल चौड़ा और इतना ही डूंगा होवे लकड़ां बाल के हवन करे, मंत्र पढ़ के आहुतियां देवे। हवन करके पवन शुद्ध हुंदी है। होम ना करन करके इसलिए पाप हुंदा है कि पुरुष तो दुर्गंध पैदा होके हवा अशुद्ध हुंदी है, जिस तो बीमारियां फैलदियां हन। जे पुराने समय की तरह हुण होम होवे तां हिंदुस्तान दे सारे रोग चले जाण। खान नालों होम घी ज्यादा वरतना चाहिए। हरेक आदमी घट तो घट 6 मासे घी दियां 16 आहुतियां नित देवे। हुण आप इस पर विचार करो कि जे हवा शुद्ध करनी है तां हवन घर विच क्यों नहीं किया जाता। जंगल की हवा तां पहला ही साफ है और हवन पात्र दे खास माप की की लोड़ है और क्या मंत्रा नाल हवा पर ज्यादा असर हुंदा है।
और बिना मंत्रा हवा घट साफ हुंदी है। जिन्हां देशां विच होम नहीं हुंदा उन्हां नाल होमियां दी सेहत दा मुकाबला करके देखो, जिस तो इस अनोखे मंतक दी आप नूं कदर मालूम होवे। जे घर दा इक आदमी उगण और आथण 8-8 पैसा भर घी फूके तां टब्बर दे 10 आदमियां नूं 160 तोले घी नित हवन वास्ते लोड़ीए और खाण लई इस तो वखरा रहिया। पंडित दयानंद ने होम विधि नाल जो हिंदुस्तान दा भला सोचिया है, साथों इस दी 1000 रसना करके भी वडियाई नहीं कीती जांदी, खास करके वर्तमान काल विखे जद कि घी 8 छटांक भी नहीं मिलता। फुटनोट समाप्त। यज्ञ और होम बाबत सिख धर्म विच सतगुरां दी यह आग्या है। होम जग तीरथ किए बिच होमे बदे विकार, नरक सुरग दुए पुंचना होए बोहर बोहर अवतार। जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। दूजा, होम जग जप तप सब संजम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप पए सरनाई, गुरमुख नानक जगत तराया। तीजा, होम जग सब तीरथां, पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह ना मिटई, विच होमै आवन जान। सतगुर मिलिए मल उतरी, हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया, जन नानक सद कुर्बान। चौथा, जग भोग नहीं वेद लख गुरमुख, मुख एक दाना पाया। पंजवां, लख जप तप लख संजमा, होम जग लख वर्त करंदे, गुर सिखी सुख तिल न लहंदे। छेवां, होम जग तप घणे, कर कर कर्म धर्म दुख रोई, वस ना आवे धावदा, अनखंड पाखंड विगोई। देखो इसे विषय पर इतिहासक प्रसंग। पैड़ा चंडालिया ते जेठा सेठी गुरु अर्जन जी दी सरन गए। जो तुसाडे बचन करके असीं किरत करके प्रसाद सिखां नाल वरताए छकदे हां, पर असां नूं ब्राह्मण कहिंदे हैन, जो पहले चक्की पीसण विच जी हिंसा हुंदी है ते बहुड़ो विच उखली दे कुट्टण करके, चुल्हे दे तपाण करके, झाड़ू फेरन करके और आटे दे छानण करके जियों हिंसा हुंदी है। अगों दे असीं देवतियां नमित होम आहुतियां अगन विच डालदे हां, पिछों प्रसाद खांदे हां। जे तुसीं आहुतियां नहीं करदे, तुहाडा प्रसाद क्यों कर पवित्र हुंदा है। गुरु अर्जन साहिब दा बचन होया, तुसीं प्रथमे गरीबां सिखां नूं प्रसाद छकावोगे ते आप भी अरदास करके वाहिगुरु का नाम लैके मुख पावोगे तां वाहिगुरु तुहाडे पर प्रसन्न होवेगा ते सब विघन नाश हुंदे हैं। अध्याय 14वां, संस्कार और चिन्ह। प्यारे हिंदू भाई साहिब, उपर 13 अंगां विच कहे होए धार्मिक नियमां तो भिन्न आप दे और साडे संस्कार आपस विच दिन रात दा भेद रखदे हन और सिख धर्म दे चिन्ह आप नालों जुदे ही नहीं सगों विरुद्ध हन। और असीं अपने 4 संस्कार अर्थात पहला जन्म, दूजा अमृत, तीजा आनंद ते चौथा चलाना गुर मर्यादा अनुसार करदे हां, जिस विच हिंदू मत दा जरा भी दखल नहीं। हुण आप इन्हां सबना बातां पर विचार करके देख सकते हो कि साडा हम हिंदू नहीं कहना ठीक है या नहीं। हिंदू, तुसीं अपने संस्कार धिगो जोरी अलग बना लए हन। गुरु साहिब दा किते हुक्म नहीं कि सिख हिंदू शास्त्रां अनुसार संस्कार ना करन और अपनी वखरी गुर मर्यादा थाप लैण। और जो तुसीं विआह पर छंत, घोड़ियां, लावां आदि पढ़दे हो, उन्हां विच केवल परमार्थ दीयां गल्लां हन, ओह व्यवहार वास्ते नहीं। सिख, यह आप दा ज्ञान है। सिख जो कुछ करते हैं सो सतगुरां दे हुक्म अनुसार करते हैं, मन उकत जरा भी नहीं करते। असीं आप नूं चारे संस्कारां बाबत सतगुरां दा हुक्म दिखाउंदे हां। पहला, गुरु अमरदास साहिब ने अपने पोते दे जन्म पर आनंद बाणी उचारण की और सिखां नूं हुक्म दिता कि संतान दे जन्म वेले इस बाणी दा पाठ होवे।
जिस दे अनुसार गुरु हरगोबिंद साहिब दे जन्म पर गुरु अर्जन साहिब ने गुर मर्यादा की, जो इस शब्द तो सिद्ध है। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब के मन भावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। और आप दे मत विच जो शुद्धि लई गोमूत्र और पंचगव्य दिता जाता है, उसका सन्मान इतने तो ही देख सकते हो कि जिस लंगर विच गोहे का चौंका दिता जावे, उत्थे महाप्रसाद कड़ाह प्रसाद तैयार नहीं किया जाता। और यह रीत अज दी नहीं, सतगुरां दे वेले तो चली आई है। इसकी पुष्टि लई देखो 8 अंक विच प्रमाण। दूजा, पहले 9 सतगुरां दे वेले चरनामृत दिता जांदा सी, जो आप दे जनेऊ पाउण दे संस्कार दे मुकाबले विच है। यह संस्कार आप दे मत तो इस वास्ते विरुद्ध है कि चारे वरण इकट्ठे सतगुरां दा चरनामृत पींदे से, जिस पर भाई गुरदास जी का बचन है, चरण धोए रहरास कर, चरनामृत सिखां पिलाया। चारे पैर धर्म दे चार, वरण एक वर्ण कराया। असी सतगुरां दी कोई जाति नहीं मानते, पर आप दे ख्याल अनुसार गुरु साहिब छतरी से, छतरी दा चरनामृत आप दे धर्म शास्त्र अनुसार ब्राह्मण कदे भी नहीं सी पी सकदा, और चरनामृत दा पहला प्रवृत्त करना ही इसलिए सी कि जाति विमान दी जड़ पुट दिती जावे। फिर इसे चरनामृत संस्कार नूं 10वें पातशाह ने खंडे दे अमृत विच बदल दिता, और अमृत छकाउण वेले जो कलगीधर ने उपदेश दिता है, उस तो साफ पाया जाता है कि सिख कौम एक वखरी कौम है। तीजा, आनंद दी रीति गुरु रामदास साहिब दे समय तो प्रचलित है। एक जरूरी फुटनोट, एक चालाक हिंदू पंडित अज्ञानी सिखां नूं धोखा देण लई लिखदा है कि आनंद पढ़ के विआह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आनंद बाणी विच लिखिया है, आनंद भया मेरी माए। इस पाठ तो इस्त्री मां बन जाती है। असी इस दे उत्तर विच यह आखदे हां कि आनंद बाणी विवाह पद्धति विच दसी होई रीति की तरह वर पठनीय मंत्र नहीं है, और ना इत्थे माए पद का अर्थ जननी है। पर पंडित जी नूं हेठ लिखे बचना पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला सोम, गंधर्व और अग्नि, यह तिन्ने देवते इस्त्री दे पति हुंदे हन। फिर चौथे दर्जे मनुष्य पति बनता है। देवतियां दी भोगी हुई देव इस्त्री देव भगतां दी मां है जां कुछ होर। कई पंडित बुद्धू आदमियों नूं अर्थ करके दसदे हन कि पति पद का अर्थ रक्षक है। असी इस पर यह आखदे हां कि जेकर देवते केवल रक्षक हन और पति खसम नहीं, तां हुण पुरुष भी रक्षक पति ही रहे, अर्थात सन्मान नाल इस्त्री नूं संभाल रखे, होर किसी तरह का गृहस्थ व्यवहार ना करे। असी ये भी पुछदे हां कि जे पति का अर्थ खसम नहीं, तां इस वाक का की अर्थ है? पूरब सत्रिय सुरे भुक्ता, सोम गंधर्व वन पी। और मनु एक होर बात आखदे हन, ओ भी सुनन लायक है। वीर्य रूप करके पति इस्त्री दे गर्भ विच प्रवेश करदा है और पुत्र रूप होके जमदा है, इस करके इस्त्री माई कहाउंदी है। पंडित जी नूं खोज करनी चाहिए है कि एक पुत जम्मे पिछों कितने श्रद्धावानां ने माई नूं इस्त्री समझ के संतान उत्पन्न कीती है, और कितनियां ने जननी भाव रख के पूज्य मन्निया है। गुरगद्दी पर बिराजन तो पहला चाहे सतगुरां दे संस्कार हिंदू मत अनुसार हुंदे रहे हन, पर गुरु शरण आउण पिछों एक रीति भी अन्य मत अनुसार नहीं हुई, जिसका प्रमाण गुरबाणी तो पूरा मिलता है। जिन्हां इतिहासकारां ने ज्ञानवश होके प्रमाद अथवा कुसंगत करके अपनी काव्य रचना द्वारा गुरु रीति तो विरुद्ध संस्कारां दा होना लिखिया है, वह मनन लायक नहीं, क्योंकि गुरबाणी तो वध के साडे मत विच कोई पुस्तक शरधा योग नहीं। फुटनोट समाप्त होंदा है। सतगुरां ने छंद, घोड़ियां, लावां आदिक इसे वास्ते रचियां हन, और आप जी दी जो यह शंका है कि इन्हां विच केवल परमार्थ है, सो सही नहीं। गुरबाणी विच परमार्थ और व्यवहार, भोग मोख दोवें हन, और शब्दां दी रचना दस रही है कि यह खास करके आनंद संस्कार वास्ते रचे गए हैं। यथा हम कर साजन आए,
साचे मेल मिलाए। दूजा, साहा गणै न करै विचार। तीजा, धन पिर ए न आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दुए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। चौथा, होर मनमुख दाज जी रख दिखा ले, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। पंजवां, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। और आनंद दे प्रमाण लई देखो गुर प्रताप सूर्य दी तीजी रास दे 38वें अध्याय विच जिक्र है कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने एक सिख दी कन्या नाल कान सिंह दा आनंद पढ़ाया और 5 प्यारिਆਂ विचों सिरोमई भाई दया सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखदे हन, आनंद बिना विवाह ना करे। चौथा, चलाना मृतक किरिया संस्कार आदि तो ही सिखां विच हिंदुआं तो वखरा है, जिस दे प्रमाण यह हन। पहला, गुरु नानक साहिब आग्ञा करते हैं कि प्राणी दे संस्कार वेले यह शब्द पढ़ना, धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया, मोहलत पुनी भाई भरी जानीड़ा घत चलाया, साहिब सिमरो मेरे भाईओ सबना यह पयाणा, इत्थे धंधा कूड़ा चार दीहां आगे सर पर जाना, रोवण सगल बिकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै, चंगा मंदा किछ सूझै नाही, एहो तन एवें खोवै, एथे आया सब को जासी, कूड़ करो अहंकारो, नानक रूना बाबा जानिए, जे रोवै लाए प्यारो। दूजा, गुरु नानक देव जी ने मरदाने का संस्कार करके कड़ाह प्रसाद वरताया। तीजा, भाई मनी सिंह जी भगत रत्नावली विच लिखते हैं कि हिंदू ब्राह्मण आदिक सिखां पर यह तर्क करते हैं कि तुसी मरण की क्रिया त्याग के अरदास ते कड़ाह मृतक ते खावदे हो। चौथा, भाई चोपा सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखते हैं, प्राणी का शरीर अंत होवे तां कीर्तन करावे, साथ प्रसाद ले जाए। पंजवां, गुर प्रताप सूर्य दी तीजी रुत दे 50वें असू विच लिखिया है, मरे सिख ते करे कड़ा, तिस कुटुंब रुदनै बहुना, पढ़ै शब्द कीर्तन को करे, सुनै बैठ बैराग सो धरै। छेवां, भाई चोपा सिंह जी लिखते हैं, गुरु का सिख भद्दन ना करावे। सतवां, गुरसोबा दे 5वें अध्याय विच बचन है, भद्दन त्याग करो हे भाई, सब सिखन यह बात सुनाई, संगत भद्दन मत करो, छुरा ना लगाओ शीस, मात पिता को मरै सतगुर करी हदीस। इन्हां प्रमाणों तो आप देख सकते हो कि सिख मत दे संस्कार अज कल दे सिखां दे मन कलप्त नहीं, बल्कि सतगुरां दे हुक्म अनुसार आदि काल तो हुंदे आए हैं। हिंदू मन्निया कि आप दे संस्कार सतगुरां दे हुक्म अनुसार हिंदू मत तो भिन्न हैं, पर केस कच्छ आदिक जो आप दे चिन्ह हैं, यह गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने खास जंग दे मौके वास्ते तजवीज़ कीते से। उन्हां दी यह मंशा नहीं सी कि सिख इन्हां नूं सदैव धारण करन और ना पहले नो सतगुरां ने केस रखे हैं। सिख आप नूं गुरु साहिब दी मंशा किस तरह मालूम हुई कि वह अमन दे वेले केस किरपान कच्छ आदि रखाने नहीं चाहते सन। इस विषय उत्ते आप पास की प्रमाण है? जे आप दे कहने अनुसार यह गल मन लईए कि गुरु साहिब ने यह चिन्ह केवल जंग दे मौके वास्ते तजवीज़ किते सन, तद यह किस तरह निश्चय किया जावे कि हुण जंग दा कोई मौका ही नहीं है। वेखो, यूरोप दे महान जंग दा किसे नूं स्वप्न भी नहीं सी, जो अचानक हो गया। प्यारे हिंदू भाई, हुण भी लख तो वधीक खालसा देश अते राज दी रक्षा वास्ते फौजी सेवा कर रहा है, और खालसा धर्म के नियमां अनुसार सारे अमृतधारी युद्ध विद्या के ज्ञाता किरपानधारी महान योद्धा सिपाही हैं। और आप दा यह आखना असत्य है कि 9 गुरु केसाधारी नहीं होए, साडे 10 गुरु ही केस रखते रहे हैं, किसी ने भी मुंडन नहीं करवाया। एक जरूरी फुटनोट, चाहे रामचंद्र कृष्ण जी आदिक अवतारां
ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਆਂ और ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹਨ और ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ ਆਦਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਨਾ ਕਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੌਰ ਢੁਲਾਵੋ। ਦੂਜਾ, ਕੈਸਾ ਨਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਣਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਤੀਜਾ, ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰੋ ਬਾਲ। ਚੌਥਾ, ਕੇਸ ਸੰਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰੋ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰੋ ਹਮ ਬਾਲ। क्यों हिंदू भाई साहिब चौर और पखे का काम बोधी भी दे सकती है और आप पास अजिहा एक प्रमाण भी नहीं जो साबित करता होवे कि सतगुरां केस नहीं रखे। हिंदू, आपने जो 14 प्रकरण मैनू सुना के हिंदू धर्म के नियम प्रगट किए हैं, इस तो जापदा है कि प्रेमी जी आप साडे धर्म तो पूरे जाणू नहीं। हिंदू धर्म के आलमगीर 7 असूल यह हैं जिन्हां नूं सब विद्वान मानते हैं और इन्हां असूलों नूं सिख भी अपने नियम जानते हैं। इस करके असीं तुसीं दो नहीं हो सकते। 7 नियम। पहला, वेदां नूं सत और हिंदू धर्म का आधार मनना। दूजा, आसक्तता रखनी अर्थात जीव ईश्वर का अनादिपना और पुण्य पाप का फल सुरग नरक मनना। तीजा, आवागवन मन के मुक्ति की इच्छा करनी। चौथा, वर्ण आश्रम नूं हिंदू कौम का भूषण समझना। पंजवां, मुरदियां नूं फूकना। छेवां, गऊ रखिया करनी ते सत्तवां, छूत छात दे विश्वासी होना। सिख, इन्हां 7 नियमां बाबत साडा समुच्चा उत्तर यह है कि किसी मत नाल 1-2 नियम मिल जाण करके एकता नहीं होया करदी और हरेक नियम बाबत भिन्न भिन्न निर्णय इस तरह है। पहला, सिखां दे धर्म का आधार वेद नहीं। दूजा, आसक्ता केवल हिंदुआं विच ही नहीं बल्कि जो मत परमेश्वर और किसी खास पुस्तक दे मनण वाले हन ओह सब आस्तिक हन और सिख धर्म विच वाहिगुरु तो छुट होर कोई अनादि नहीं और पुण्य पाप का फल सुख और दुख सारे आस्तिक लोग मानते हैं। तीजा, आवागमन सिख और हिंदू ही नहीं मानते सगों प्राचीन समय विच मिस्र और यूनान निवासी भी इस बात के विश्वासी हैं और इंग्लिस्तान का ड्रुइड पादरी तथा पीथागोरस, एम्पीडोकलस आदिक फिलासफर भी आवागमन मनण वाले होए हैं। चौथा, वर्ण आश्रम बाबत देखो इस पुस्तक का अंग 2। पंजवां, मुर्दे फूकने अरोगता का ख्याल करके बहुत उत्तम हैं पर यह सिख धर्म का नियम नहीं है। श्री गुरु अर्जन साहिब अते माता गंगा जी का शरीर जल प्रवाह किया गया सी और मुर्दे हिंदू ही नहीं फूकते बल्कि पुराने जमाने विच यूनान और रोम विच भी चिता बना के मुर्दे फूके जाते सन और इस विद्या के समय विच बहुत यूरप निवासी मुर्दियां दा फूकना चंगा समझण लगे हैं और हिंदुआं विच भी योगी सन्यासी आदिक अनेक फिरके हैं जो मुर्दियां नूं दबदे हैं और अनंत हिंदू गंगा आदिक नदियां विच मुर्दे परवाउंदे हैं। ऐसी हालत विच कौन हिंदू आख सकता है कि मुर्दे जलाउणे हिंदू धर्म का नियम है। 6वां, गऊ साडे देश लई लाभदाई है, इस दी जितनी भी रखिया योग कदर की जावे सो थोड़ी है और सिख इस नूं प्राणा जिहा प्यार करते हैं पर गुरमत विच गऊ की कदर और बेकदरी हिंदुआं जिही नहीं अर्थात ना गऊ का गोहा और मूत पींदे खांदे हैं और ना गोबर का चौंका दिंदे हैं और ना वेद विधि अनुसार गोमेद यज्ञ करन नूं तैयार हैं और ना प्राहुणियां नूं गोगन नाउ लैके बुलाउंदे हैं। 7वां, छूत छात का भरम सिखां विच मुड्ढों नहीं है। प्यारे हिंदू जी, आप दा इन्हां नियमां नूं आलमगीर आखना केवल अज्ञान है। जे विचार के देखा जाए तो हिंदू धर्म का कोई नियम अजिहा नहीं जो अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव इन्हां तीनां दूषणों तो रहत होवे। जिस तरह हिंदुआं दे देवते और धर्म पुस्तक अनंत हैं इसी तरह धर्म के नियम भी बेअंत हैं। श्री रामचंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र
मित्र, परशुराम, कृष्ण, युधिष्ठिर आदि केस और दाढ़ी रखण वाले अमुंडत भी हिंदू हैं और बौद्धि तथा बोधि रहत साफ चट्टम भी हिंदू हैं। वेदां दे विश्वासी भी हिंदू और वेदां नूं भंड निसाचरां दा रचिया होया मन्नण वाले आचार्य दी संप्रदाय भी हिंदू है। सब जीवां तो श्रोमणी जो मनुष्य है उस नूं वड्ड के यज्ञ विच हवन करन वाले भी हिंदू हैं और कीड़ी दे पैर हेठ दब के मरण तो डरन वाले भी हिंदू हैं। चूहे, कुत्ते, कन खजूरे आदि दी पूजा करन वाले भी हिंदू हैं और परमेश्वर नूं सहे दे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ तरह अणहोया समझण वाले भी हिंदू हैं। भाव यह है कि हिंदू धर्म की अगाध कथा है जिस दे लिखण लई साडी कलम असमर्थ है और सब तो वध के अनोखी गल यह है कि हिंदू मत तो छुट आप संसार दे किसी मत विच यह नहीं देखोगे कि उसका धार्मिक नाव उसदे धर्म पुस्तक विच ना होवे और किसी अन्य धर्मी का कल्पिया होया नाव अंगीकार करे। इस विषय उत्ते एक मजमून 16 अप्रैल 1913 दे सिविल मिलिटरी गजट विच छपिया है जिसका खुलासा आप नूं सुनाउणा योग है। इस गल तो पहला कि हिंदुआं दी बाबत कुछ बयान किया जावे योग प्रतीत हुंदा है कि वाह लगदे हिंदू दा लक्षण करिए कि हिंदू किसनूं आखदे हन। इहो एक ऐसा शब्द है जिस पर कई सूबियां और रियासतां दे मनुख संख्या करन वाले अफसरां ने बड़ी मेहनत नाल निर्णय किया है पर सब दा आपो विच ही विरोध है। मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैनियां दा लक्षण करना सौखी गल है पर जद हिंदुआं दा लक्षण करन लगीए तद भारी औख जापदा है। गेट साहिब कमिश्नर मरदमशुमारी ने लिखिया है कि हिंदू ओह हन जो वड्डे वड्डे देवतियां नूं पूजदे हन, हिंदू मंदिरां विच जाण अते चढ़ावा देण दे हकदार हन और जिन्हां दे छूहण नाल दूजे लोक अपवित्र नहीं हो सकदे। कोचीन दे सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि उपर लिखे लक्षण मालाबार दे आम हिंदुआं पर नहीं घटते और आप हिंदू दा यह लक्षण करते हैं कि हिंदू ओह है जो जात पात नूं मानदा है। मैसूर दे सुपरिटेंडेंट आखदे हैं कि हिंदू ओह है जो परमेश्वर नूं मानदा है और निश्चय रखदा है कि इस जीवन अथवा पिछले जन्म दे कीते शुभ कर्मां करके ओह किसी दिन ऐसी पदवी पाऊगा जिस दे तुल दुनिया विच कोई वस्तु नहीं। ट्रावनकोर दे सुपरिटेंडेंट साहिब भी हिंदू उसनूं आखदे हन जो कर्मां ते भरोसा रखण वाला है। बलंट साहिब ने बहुत निर्णय करके यह सिट्टा कढ़िया है कि हिंदू ओह है जो इस भारत खंड दा असल वसनीक है और जिस विच गैर मुल्क दी नस्ल दा मेल नहीं और जो ब्राह्मण नूं गुरु मानदा है और गां दी इज्जत करदा है, घट तो घट गऊ नूं मारना जां दुख देना पाप समझदा है। अंत विच बलंट साहिब यह गल भी लिखते हैं कि यह लक्षण भी हिंदुआं दा पूरा नहीं है और वास्तव विच हिंदू मजहब की कोई हद नहीं और बेहद नूं हद विच लिया नहीं सकते। बलंट साहिब दे इस उपर लिखे लक्षण नूं हरेक आदमी मनण लई तैयार नहीं बल्कि यह बयान वेद दे रचन वालियां नूं भी आश्चर्य कर देण वाला है। इलाहाबाद दे सूबे विच कई फिरके ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, मुर्दे दबदे हैं, ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करते और कई ब्राह्मणों नूं बुलाउंदे हैं और मुर्दे फूकते हैं, कई दबदे हैं। चमार गां खांदे हैं और हिंदुआं विच ही गिणे जाते हैं। सिद्धांत यह है कि जे कोई हिंदू शब्द की असलीयत समझण वास्ते मरदमशुमारी के अफसरां दीयां रिपोर्टां ते नोटां नूं पढ़ के तसल्ली करनी चाहे तद कुछ नहीं हो सकती। उसकी हिंदुआं बाबत उतनी ही जांच रहो जितना कि इसनूं किताबां पढ़न तो पहला सी। हिंदू आप धार्मिक नियमां और रीतियां करके चाहे साथों वखरे हो पर नीति दे विचार नाल असी एक हां क्योंकि सिखां दा कोई वखरा कानून सिख लॉ नहीं किंतु हिंदू कानून हिंदू लॉ अनुसार ही सब फैसले हुंदे हन और सिखां नूं हिंदू लॉ अनुसार ही चलना पैंदा है। इस वास्ते हिंदुआं तो अलग नहीं हो सकदा। सिख प्यारे हिंदू जी, आप दा हिंदू लॉ जो धर्म शास्त्र अनुसार असल कानून है अजकल किते भी नहीं वरतिया जाता। जे कदे ओह प्रचलित हुंदा तां बहुतियां दे नक कन हथ पैर कट्टे हुए दिखाई दिंदे और कितनियां दे मूंह कन्ना विच तत्ता तेल और सिक्का पैंदा नजर आउंदा। कानून हमेशा
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਰਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਸਟਮੇਰਲੀ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥਾਪਦੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਵਰਤਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਭਦਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਹੈ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੋੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਥਾਂ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਈਸਾਈ ਜਦ ਤਾਈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਦ ਤੋੜੀ ਮੰਦ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜੁਦਾਈ ਕਰੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਥਾਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਔਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜੋਸੀਆਂ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਔਰ ਲਾਭ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਔਰ ਲਾਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਕੇਸ, ਕੱਛ ਆਦਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜਾ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੀਜਾ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, पिछले गंगा दे कुंभ पर 1 लाख सिख तीर्थ यात्रा पर गया। जे एक आदमी पिछे घट तो घट 10 रुपए खर्च दे लाइए तो 10 लाख रुपया केवल एक मेले का जुड़ता है, जो साडी भोली कौम ने व्यर्थ गवा दिता। जे इस रुपए नाल सिख लड़कियां वास्ते कॉलेज बन जांदा तां कौम नूं इतना लाभ पहुंचदा, और जे यतीमखाने खोले जांदे तां किहा चंगा हुंदा। इसी तरह जम्मने और मरने पर नित ਲੱਖਾਂ रुपया सिख कौम का बर्बाद हो रहा है। जे यह कौम की रकम कौम विच ही शुभ कारजां पर खर्ची की जावे तां कितनी तरक्की हो सकती है। चौथा, हिंदुआं दी तरफों नित यह यतन हुंदा है कि सिक्खी दे निशान मिटाए जाण और सिखां नूं हिंदू मत विच ही लीन कीता जावे। दृष्टांत लई देखो, जद कोई अज्ञानी सिख श्राद्ध कराउंदा जां गया आदिक तीर्थां पर ब्राह्मणां दे धक्के चढ़दा है तां पहिलां कच्छ और कड़े नूं विदायगी दित्ती जांदी है, जिस दा भाव यह है कि सिक्खी दे चिन्ह धार के ओह हिंदू रीति नहीं करा सकदा। पर जे सिख हिंदू धर्म पर भरोसा ही ना रखण तां हिंदुआं दी यह समर्था नहीं कि सिखां दे घर जाके उन्हां दे धार्मिक चिन्ह दूर कर देण। और आपने जो आख्या है कि सिख कौम दा हिंदुआं तो जुदा होना विरोध दा कारण है, सो भी सही नहीं, क्योंकि सिख किसे नाल विरोध नहीं करते। ओह सतगुर दे इन्हां बचना पर निश्चा करके सब संसार दे जीवां नूं अपना प्यारा समझते हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। दूजा, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में है यह विचारियो। तीजा, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हम को बन आई। चौथा, रोस ना काहू संग करहो, आपन आप विचार। पंजवां, मंदा किसे ना आख, झगड़ा पावना। छेवां, गुरमुख वैर विरोध गवावै। सतवां, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना। प्यारे भाई, यह कहावत प्रसिद्ध है कि ताड़ी दोहां हत्थां नाल वजदी है। सो जे कोई अकारण सिखां नाल विरोध करे तां इस पासियों शांति होण करके आपे ही विरोध शांत है। दृष्टांत लई देखो, जद सिखां नूं हिंदुआं ने मुसलमान हाकमां पास फड़ के पेश किया और कतल करवाया और केसां वाले सिर वड्ड के हाकमां पास भेज के इनाम हासिल किते, उस वेले भी सिखां ने हिंदुआं नाल वैर करन दी थां उन्हां दी बहु बेटियां दे छुड़ाउण वास्ते और इस देश तो अधर्म और जुल्म हटाउण लई अपना लहू वहाया और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस बचन पर अमल किया। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। और असी ये भी चंगी तरह जानते हाँ कि हिंदुआं दा साडे नाल कोई वैर नहीं, सगों प्रेम है, और वह साडे सतगुरां दे उपकारां नूं अच्छी तरह जानते हैं और असी भी सदैव उन्हां दा भला चाहुंदे हां। विरोध का कारण सिर्फ वह आदमी हैं जिन्हां नूं खुदगर्जी रूप भूत लग्या होया है और जो सिख कौम नूं अपना दास बना के खिस्से भरने चाहुंदे हैं। उन्हां नूं भरोसा हो गया है कि जे सिख कौम साडे हत्थों जांदी रही तां आमदन दा भारी हिस्सा मारिया जाओ। यही लोग जगह जगह रौला मचा के उपाधि छेड़ रहे हैं और विरोध फैला रहे हैं। जे वाहिगुरू इन्हां नूं समत देवे तां कमाई करके खाण नूं चंगा समझण और बगाने हक नूं हराम जानण, फिर आप ही सारे झगड़े मिटे पए हैं। इन्हां स्वार्थी लोकां ने ही पोथियां छाप के और अखबारां विच मजमून दे के यह सिद्ध करन दा यतन कीता है कि सिख हिंदू हैं। भला कोई विचारवान सोचे कि जे सिख अपने आप नूं अहिंदू कहिंदे हन तां किसे दा की विगड़दा है। हाँ, जे सिख हिंदुआं नूं आखण कि तुसीं हिंदू नहीं तां बेशक झगड़े दी गल है। जे कोई यह आखे कि हिंदू सिखां नाल हमदर्दी करदे हन और उन्हां नूं अपने तो वखरा हुंदा देख के दुख मानदे हन तां इह गल भी निरी झूठ है, क्योंकि चारे पासियां तो सिखां नूं मलिया मेट करन लई जो हिंदुआं दी तरफों यतन हो रहा है सो किसे तो गुज्जा नहीं। कोई हिंदू एक दृष्टांत लई तां दस्से कि फलाणे सिख नूं धर्म तो पतित हुंदे किसे हिंदू ने बचाया है। इस दे विरुद्ध असी हजारां दृष्टांत विखा सकते हाँ कि कितनियां सिखां दे हिंदुआं ने केस दूर किते, कईयां नूं हुक्के दी धूप दित्ती, कईयां दे किरपान
ਕੱਛ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਏ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਉ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਔਰ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਈਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਕੋਤਕੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਲਪ ਲੈਣ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਉੱਨਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਆ ਧਰਮੀ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਣਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਸ਼ ਨਾ ਵਧੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਚਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝੋਗੇ। ਅੱਜ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।